हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और ये 1870 में स्थापित ये विद्यालय और इसके सभागृह में उपस्थित आप सब, अगर इस विदेशी भाषा जिसमें मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, इसमें अगर आपको अड़चन आए तो मैं भारत की भाषा अंग्रेजी में भी बात कर सकता हूं। I came to the city of Mumbai exactly on 29 June 1982. So this year, on the same date, on 29 June, I've completed 40 years in the city of Mumbai. My first film in Mumbai was Mandi, directed by Shyam Benegal. Then I started my career. I come from a poor, humble background. My father was born in Peshawar. My mother was Bengali Brahmin, but after they married, when they got married, my father inspired her, motivated her to learn Urdu. And my ma not only learned Urdu, she learned Persian and Arabic also. And she got retired as a lecturer of Urdu and Persian, received the government award for that. I think very, very rare case that a Hindu, Bengali, Brahmin woman becomes a scholar of Arabic, Persian and Urdu. So whatever I share with you is because of my Babuji and my Ma. So she always inspired all of us. I have 3 more siblings, 1 sister and 2 brothers. Right from the very beginning, she never imposed, never forced us. Only say whatever you feel like reading besides your academics, read it. So by 7th standard or 8th standard, I remember that standard 5 or 6, I got hold of a book by Charles Dickens called Tale of Two Cities. And I started reading it. I could not understand it, but Dickens is not a very difficult writer to understand. It's not difficult. But when I made my first feature film as a director, my film was based on a story written by great Oscar Wilde. Name of the story is The Canterville's Ghost. And I added some Indian philosophy in my film. Hindi title was Abhay. As you mentioned, I received the National Award. I received award in New York also. I received V. Shantaram Award also for my first national award was for direction, not for acting. Second award was for Vicky Donor, and I received not only 1 or 2 awards. I received all the major awards for Vicky Donor playing that doctor. So yeah, I'm a happily married man. I come from a small village. I was born in Bhopal, but through my life I've lived in several villages of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and Rajasthan. So I know what is Malwa. I know where is Dhar. I know where is Bagdi or Amjera or Karnavad or Hat Piplia or Double Chowki or Devas or Sonkach or Nasrullaganj or Urchhavar, Bhopal, Sihor, Raisen, Begamganj, Harda, Pashtim Nimar, Khidkiya, Timarni. I know everything. Yeah. I know my country. And when I married, my wife is
from America. So I'm the only one in that house, which is called home. I'm the only Indian who's living there among the Americans. But I've never tried to impose that you should learn Hindi or you should learn the language of this country, fully knowing that ironically, alas, how can I impose my thoughts on my children and my wife to learn Hindi when majority of the people of this country don't know the national language of this country? Very true. Now, not knowing anything cannot be considered a crime. I was just telling this thing. Yeah? Ignorance cannot be considered a crime until and unless it's well defined by the law of the land, which I explained just now, 10-15 minutes back. बट यहां इग्नोरेंस है और एरोगेंस भी है. इग्नोरेंस इस बात की कि हमें हिंदी नहीं आती तो क्या हुआ, और एरोगेंस इस बात की सो व्हाट. सो ये आधी दुनिया का भ्रमण करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा मैं कि ये कीटाणु केवल भारतवर्ष में पाया जाता है. कि जहां के लोगों को उस देश की राष्ट्रभाषा या किसी भी प्रदेश की भाषा, हम कहते हैं हमारे विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसा बोलते हैं ना, आप नारे वारे लगाते हैं, पॉलिटिशियंस लेते हैं, अभी भी बहुत आपके सब चलते हैं यहां पर. डाइवर्सिटी दिखती है, विविधता दिखती है, एकता कहां है? एकता हो ही नहीं सकती. ना धर्म के नाम पर एकता है, ना अंचल के नाम पर एकता है, ना भाषा के नाम पर एकता है. एक जगह हो सकती थी और वो था तिरंगा के नाम पर एकता, वहां पर भी पॉलिटिक्स हो गई है ना. वो कहेंगे भगवा, वो कहेंगे हरा, कोई कहेगा सफेद. तुम अपनी दृष्टि तिरंगे पे रखना कि उसी में तुम्हारी शान है, वही तुम्हारी पहचान है. ध्यान रखना, हर एक उसमें से अपना अपना हिस्सा लेने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान तुम्हारा तिरंगा है. तुम्हारी पहचान तुम्हारी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, जिसको तुम भारत माता बोलते हो. इसलिए भगवान के लिए भारत माता का कोई हस्बैंड नहीं हो सकता जिसको तुम राष्ट्रपिता बुलाओ. कितनी वाहियात और मूर्खतापूर्ण बात है. भारत माता है हमारी, हम सब भारत माता के लाल और लालियां हैं. आप अपनी श्रद्धा और सेंटिमेंट्स और ओवरवेल्म्ड होके किसी को ऐसे टाइटल्स मत दे दो भाई, प्लीज ऐसा मत करो. आप अपने देश की भाषा कन्नड़ सीखिए, आप तमिल सीखिए, कोई प्रॉब्लम, मराठी सीखिए, बंगला सीखिए, हिंदी सीखिए, मारवाड़ी सीखिए, पंजाबी सीखिए, अपनी भाषा तो सीखो भैया. लेकिन नहीं, it is high time that we realize that the language, or especially the English, is just a symbol and medium of communication, not the sign of intelligence and intellect. जी. अमेरिका में कितने बड़े गधे बैठे तुमको पता भी नहीं होगा. जैसे इंदौर में कितने गधे बैठे हैं वैसे ही तुमको पता नहीं है, वैसे अमेरिका में भी उतने ही गधे हैं. गधों की संख्या थोड़ी बहुत इधर उधर होती है. एक हमारे पंजाब के दोस्त थे, वो कहने लगे कि यार मैं ते हुण अमेरिका जाके आया है यार, मैं कमाल के एजुकेटेड लोग है, बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है यार उत्तर तो. मैं कहता बहुत एजुकेटेड लोग हैं, इन्हें बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है. लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है. पता है क्यों? सिंपल रीजन है, गुलामों की औलादें, उनके खून से गुलामी बहुत देर में जाती है.
मुझे मालूम नहीं आदम हव्वा क्या थे। ये मोनोथीस्टिक रिलीजन के अंदर अभी एक बड़ी बड़ी कमाल की बातें हो रही। मोनोथीस्टिक रिलीजन मतलब अब्राहमिक रिलीजन है, जिसको जूडाइज्म बोलते हैं, जायोनिज्म बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, इस्लाम बोलते हैं। उनका जो आदि की उत्पत्ति है, सृष्टि की उत्पत्ति है, क्या सृष्टि उत्पन्न कैसे, हिंदुओं में भी है। हिंदुओं में ब्रह्मा के नील कमल के फूल से खिली है, वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि वो सब मनुष्य के द्वारा लिखी गई हैं। मार्क ट्वेन का नाम आपने सुना होगा, आपने तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स को बुलाया हो ना। मार्क ट्वेन एक बहुत अमेरिकन कमाल का राइटर था। उसने एक बड़ी अचूक और अनमोल बात कही है, अचूक और अनमोल, सुन लेना आप। उसने कहा, when the first religion was invented, the religion was invented when the first con man met the first fool on this earth. अंग्रेजी में बोला है, समझो पहले है कि सनी लियोनी बहन बोलेगी तभी समझोगे। या द रिलीजन वॉज इन्वेंटेड व्हेन द फर्स्ट कॉन मैन मेट द फर्स्ट फूल ऑन दिस अर्थ। नाउ द लेटेस्ट discovery about the anatomy of the science proved that, I'm sure you must be knowing, everybody knows the story that in the first 5 days, Lord God, Jehovah or Allah or whatever, God created the light and the stars and the moon and sun and river and mountains, right? Right from the very beginning in Genesis. Are you familiar with Bible, this Abrahamic religion? If not, please you can go. And the 6th day, he created Adam. आदम का नाम सुना है आपने? सुना? आप इतने तो पढ़े लिखे हो कि आदम का नाम सुना होगा। और आदम की रिब में से निकाली गई कौन? बिल्कुल सही, ईव। Now the latest, please, I request with my folded hands, please go and read the latest discovery of chromosome number 44, which clearly defines and proves the anatomical science कि जिसकी हड्डी से, अगर मेल की हड्डी से अगर वो 44 नंबर का क्रोमोसोम जो रिब से निकाला जाएगा, उसमें औरत नहीं आदमी निकलता है। आदमी है, क्योंकि ये जो लिखी गई कहानियां हैं सच्चाई नहीं है, फिक्शन है। You must have heard about this phrase in English that the man is the best creation of God and God is the best imagination of man. Imagination है, कल्पना है और कुछ नहीं है। और ऐसी कल्पना न जिसको देखा है, न कभी देखने की उम्मीद है तुम्हें, उसके लिए न जाने कितना साहित्य लिख दिया गया है, न जाने कितने रसखान बन गए हैं, न जाने कितने ओसामा बिन लादेन बन गए हैं। माइंड इट, ये सारा खेल आपके माइंड का है। सो आप लोग यहां पर कुछ सोच के, कुछ महसूस करके, कुछ खास पाने की उम्मीद में आए हैं। डेफिनेटली ये तो पक्का है। आज आप सराफा में जाते हैं और रात को 8 बजे के बाद जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूं कि आपको रात को 8 बजे आप में से शायद 1% लोग चड्डी बनियान खरीदने वहां पे जाएंगे ना। आप जोशी के दही बड़े खाने जाएंगे आप जी। सो आप यहां पर कुछ खास सुनने के लिए, मजा लेने के लिए आए हैं। मजा भी कई तरह का होता है, आप ध्यान रखिएगा। और जिंदगी में जिनके मजा रहा वही आगे बढ़े हैं। मुझे तो मजे का पहला जो लेसन था वो मैं जयपुर से कोटा जा रहा था, जयपुर से झालावाड़ जा रहा था, तो वहां पर टोंक एक जगह पड़ती है, वहां पे मैं रुक गया। ठंड के दिन थे और तब ये मिनरल वाटर का चलन नहीं आया था। तब हमको मालूम नहीं था कि मिनरल वाटर क्या होता है। सो एक खेत की मेड़ पर रुक गया मैं और मैंने कहा थोड़ा पानी मिलेगा। आ गया, लेकिन पानी पीने से पहले उसने मुझको
वो मूली दे दी और गाजर भी दे दी और थोड़ा सा शायद काली मिर्च और नमक भी मिला के दे दिया और मैंने खाया और मैं पानी पिया और मेरे मुंह से यकलख्ता निकल गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो सुनो, वो किसान ने जो अनमोल वचन मुझे दिए वो तुम्हारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं दे पाएंगे। वो किसान मुझसे बोला, हम मालवा प्रदेश में बैठे हैं तो बिल्कुल मारवाड़ी और मेवाड़ी का जो राजस्थानी अंग है हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो किसान, मैंने बोला मजा आ गया, वो किसान मुझसे बोला, कंवर साहब यो मजो भी घनी टेढ़ी चीज है। सुनिएगा, कंवर साहब यो मजो भी घनी टेढ़ी चीज है, नी आवे तो करोड़ रुपया में नहीं आवे, ने आ जावे तो एक गिलास ठंडा पानी में आ जावे। क्या बात। तो जहां से मिले मजा उसको ले लेना। और अ क्लासिक इज अ वर्क ऑफ पीस ऑफ आर्ट विच हैज एवर लास्टिंग ब्यूटी। और अगर ये मजा सारी जिंदगी भर किसी बुद्ध, महावीर ने, किसी रामानुज ने, किसी शंकर ने, किसी मीरा ने, किसी कबीर ने सारी जिंदगी भर बना के रखा है, तो कोशिश करना कि उनकी तरह ये मजा तुम्हारी पूरे जिंदगी भर बनाना है। बाकी सारे मजे जो है ना मोमेंटरी हैं, चले जाएंगे। आज जो स्त्री पसंद है, जरा इमेजिन करो, आज क्या तुम्हारी कौन कौन सी हीरोइन है। मैं माफ करना, मैं ना फिल्में देखता हूं, ना टीवी देखता हूं, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूं और ना न्यूज चैनल देखता हूं। मैं इन सब चीजों से दूर हूं और मुझे अपने मूर्ख होने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। थैंक गॉड आई एम ए फूल, नो प्रॉब्लम। मुझे मेरे मूर्ख होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो विद्वान होने का दावा करते हैं उन्होंने क्या उखाड़ लिया है? कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने। तो मेरे जैसा मूर्ख ही ठीक है, मेरे जैसा मूर्ख ही चाहिए। ये विद्वान जो है ना, ये फसाद की सारी जड़ें हैं। ये सारी फसाद, ये फितनागिरी वहीं से आती है। तो कल के दिन किसी स्त्री के प्रति तुम्हारे हृदय का चार्म खत्म हो जाएगा। ये शरीर, ये सारा जिस्म थक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं धोखे में नहीं था, आपको सजदा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये शरीर भी थक जाएगा, लेकिन मीरा का नृत्य कभी नहीं बंद होगा। तो मजा ऐसा ढूंढना जो कभी चुके नहीं। शराब का नशा, दौलत का नशा, सेक्स का नशा, स्त्री का नशा चुक जाता है, तुम्हारा शरीर कुछ नहीं कर पाएगा, सारा शरीर यहीं पे आके बैठ जाता है। और फिर जो स्त्री तुम्हें प्रेम करती है, उसी से तुम कहते मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। स्वतंत्रता जिनको मिलती है वो वहां पे जाके कंदराओं गुफाओं में बैठ जाते हैं। उन कंदराओं गुफाओं में प्रेम नहीं है, स्वतंत्रता है। ऐसा प्रेम स्वतंत्रता लेके करोगे क्या तुम? क्या बात। क्या ऐसा संभव है कि प्रेम भी हो और स्वतंत्रता भी हो? उसके लिए तुम्हें अपने सोलमेट को ढूंढना पड़ेगा, और वो तुम्हारी किस्मत है। मेरी किस्मत है, मुझे मेरी सोलमेट मिल गई, जिसको ठीक से मेरी भाषा भी बोलनी नहीं आती है, उसको साहित्य से कोई मतलब नहीं है, उसको फिल्मों से कोई मतलब नहीं है, उसको गीत संगीत से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मुझसे मतलब है। मैं शायद 5 बजे मिला हूंगा उससे, और 5:35 पे तो मैंने प्रेम कहकर शादी भी प्रपोज कर दी। 17 दिन बाद शादी भी कर ली। अब वो शादी हो गई, उसके बाद फिर उनके माँ बाप को पता पड़ा वो अब अपने माँ बाप की इकलौती संतान है भाई। अब वहां पे तो हंगामा हो गया, फटीचर से न शक्ल है, न सूरत है, न पर्सनालिटी है। कौन है फटीचर? ये दुगड़ा कौन है? क्या है इसको? पलासिया के ऊपर साले को बैंगन बेचने चाहिए। कहां से हमारी बेटी को शादी कर लिया? तो माता जी ने फोन किया, आई होप यू विल बी एबल टू कीप माई डॉटर हैप्पी। मैं आशा करती हूं कि तुम मेरी बेटी को सुखी रख पाओगे। मैंने कहा जी गारंटी किसी चीज की नहीं है। I really mean it. I said it. गारंटी किसी चीज की नहीं। तब मैं हिंदू हुआ करता था। बेसिकली मैं एग्नोस्टिक हो गया हूं, नास्तिक हूं आम आदमी को बताने के लिए। धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी भी धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि धर्म से मेरा लेना देना नहीं है, इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं है। बात का तो बड़ी सिंपल सी बात है।
सो मैंने कहा मॉम, मैंने कहा मिसेस पटेल, अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी के सुख और दुख की गारंटी देने को तैयार हो, तो मैं गारंटी दे दूंगा कि मैं आपकी बेटी को सुखी रखूंगा। गारंटी देने वाला तो भगवान भी नजर नहीं आता। आदमी के बस की बात क्या है? तो मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, तुम्हारी बेटी को भूखा नहीं रहने दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता हूं मैं। ये हमारी दीदी बैठी है, गारंटी दे सकती है क्या? क्या दे सकती है कि अभी यहां से मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा? गारंटी किसी चीज की नहीं है। हर पल जो सांस ली तुमने, समझ लेना ओ माय गॉड, अनदर, एक और सांस मिली जीने के लिए। सो जब सोलमेट मिल जाए, बड़ी किस्मत की बात है, बड़ी किस्मत की बात है। देखो यहां पर तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, उसको याद है, मैं शायद उसके बारे में बात कर रहा हूंगा। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स हैं। आज भी वही स्त्री, मुझसे 12, 13, 14 साल छोटी है, वही एक लड़की ऐसी है, मैं उसको कभी स्त्री की तरह नहीं देख पाऊंगा। शी वाज जस्ट 23 years old जब भगा के ले गया मैं उसको। तो वही एक है जिसके साथ मैं घंटों बैठा रहता हूं। ना कोई साहित्य है, ना कोई संगीत है, ना कोई माटी की खुशबू, कुछ नहीं है। वो मेरे फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट के टाइम पे पूछना व्हाट यू गोइंग टू हैव इन लंच, वही है, वही है। उसके फोन ने मुझे कभी इरिटेट नहीं किया यार। और जब कभी किसी जमाने में मुझे ये बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता था, तब तो अभी थोड़ा सा अच्छी हिंदी हो गई है उनकी अभी, लेकिन अपन जैसे अगर धारा प्रवाह बोलने लगे ना अपन, तो वो उनके समझ में नहीं आएगी। जैसे हम बोल रहे हैं कि इस तरह धारा प्रवाह बोल रहे भाई, उनको समझ में नहीं आएगा क्या पलासिया में खड़े, ये समझ में नहीं आई, तो बहुत आराम से बोलना पड़ता है। तो आज से कुछ 5-6 साल पहले हमारा जो शेफ थे, उनका नाम था छवि। तो छवि को उन्होंने बोला, छवि आज भैया के लिए बैंगन का भरवा बनाइए। अभी वो जो छवि था, वो उसको समझ में नहीं आया कि मैडम ये क्या बोल रही है। सो अब मैडम को भी समझ में नहीं आया कि क्या मतलब, क्यों हंसा है। नहीं नहीं नहीं, अभी भैया के लिए, आपको भैया को अच्छा लगता है, ज्यादा उसमें स्पाइस नहीं करना है, भैया के लिए भरवा बनाओ अच्छे प्यार से। फिर जब मुझे लगा, और एक्चुअली यही बात कोई टेलीविजन के किसी शो में ऐसे ही बता दी होगी, एंड शी सॉ दैट, एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड गिगलिंग, पीपल स्टार्टेड, डिड आई से समथिंग रॉन्ग? आई से नो भाई, देवी तू मेरे लिए बैंगन का भरवा बना के आलू का भरवा बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।